Hello students, in this lecture we have to study applications of Gauss theorem, and one of the application is electric field intensity due to a uniformed charged spherical cell. So let us consider a charged spherical cell of radius r of charge density sigma. The charge on the surface of a spherical cell is uniformly distributed over its surface. So first of all, we will find out the electric field outside the sphere. स्पेयर कौन सा जो स्पेरिकल सेल है उसके हम आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. So suppose we have a spherical cell and its surface charge density is positive sigma and radius is r, charge is q. We have to find out the electric field at point P. So to calculate the intensity at point P, we have to consider a Gaussian surface. Considering this point P on the Gaussian surface means जो P पॉइंट है वो इस Gaussian surface के ऊपर होना चाहिए. ऐसा एज्यूम करके हमने क्या किया, Gaussian surface कंसीडर किया. अगर ये पॉइंट आउटर साइड यहां होता तो हम इतना बड़ा क्या करते, Gaussian surface एज्यूम करते. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अब किसी भी पॉइंट पे चली जाए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट इज सेम एंड इस Gaussian surface के से जो एनक्लोज्ड चार्ज है दैट इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी क्यू, एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा. Now we will consider a surface element at point P and the direction of the area of this surface element will be normal to this one, means इस particular surface के perpendicular होगा this one, and the electric field will be radially outward क्योंकि क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, it means both are in the same direction. So angle between E vector and ds vector is 0 degree. So from the Gauss law, the mathematical expression of the Gauss law is this one: phi equals to closed integral over surface E vector dot ds vector equals to q upon epsilon naught. अब इस Gaussian surface से जो enclosed charge है that is q, okay, and E vector dot ds vector डॉट प्रोडक्ट जब ओपन होगा तो कोस थीटा क्या है यहाँ पे 0, तो कोस 0 क्या बन जाएगा 1. तो E कांस्टेंट है बिकॉज जो Gaussian सरफेस है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द Gaussian सरफेस विल बी सेम, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक है. And the surface area of the Gaussian surface is 4 pi r square. R is small, ध्यान रहे r क्या है यहाँ पे small r है, capital R is the radius of the spherical cell. So the electric field is q upon 4 pi epsilon naught r square और kq upon r square. ठीक है, since q equals to sigma into 4 pi r square means जो चार्ज होता है वो क्या होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई द एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. तो व्हेन वी विल पुट दिस वन, सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. तो इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन यूज हियर r कैप and here also we can use here r cap. Electric field due to a uniformly charged thin spherical cell at a point outside the cell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the cell. मीन्स उसी तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह से कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ हो. नोट्स देख लेते ना. नोट्स में भी आपने क्या किया है आउटर साइड के लिए Gaussian सरफेस एज्यूम किया है ये. ठीक है,
यहां पे आपने एंगल डिफाइन किया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ds फैक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो सेम ही एक्सप्रेशन है जो हमने वहां कैलकुलेट किया था अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to sigma capital R square upon epsilon naught small r square, or in the form of unit vector there will be n cap, or you can use r cap also, radially outward. In the form of charge, E vector will be equals to kq upon r square r cap, where q is the enclosed charge by the Gaussian surface, और यही जो आपका एक्सप्रेशन है वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। Now electric field at a point A on the surface of the cell. अभी जो हमने कैलकुलेट किया वहां पॉइंट आउटसाइड द सेल था। नाउ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल है। ठीक है, तो सेल की सरफेस पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो गाउसियन सरफेस ही खुद ही बन जाएगा। तो जब गाउसियन सरफेस ही खुद बन जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए एज्यूम करेंगे, and here we are considering a surface element. Again the direction of this surface area will be outward to this and along to normal of this surface, this one, and electric field will also be in the same direction. So angle between E vector and ds vector will be 0 and cos 0 will be 1. Again according to Gauss law, this is the mathematical expression of the Gauss law. Electric flux enclosed by the surface equals to closed integral over surface of E vector dot ds vector equals to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. So again जो डॉट प्रोडक्ट है वहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए 1, तो E will come outside because यहाँ पे हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, और r यहाँ पे कैपिटल R आएगा क्योंकि गाउसियन सरफेस की भी जो रेडियस होगी वो r ही होगी, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही गाउसियन सरफेस हो जाएगा। क्योंकि गाउसियन सरफेस we have to assume the Gaussian surface such that the point where we have to find out the electric field intensity must be on that particular surface. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका पहले से ही ए पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये पहले से इसी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे रखा हुआ, तो गाउसियन सरफेस भी यही बन जाएगा। तो E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। वही एक्सप्रेशन है जो पहले आया था, वहां यहाँ पे क्या था, स्मॉल आर था, और यहाँ क्या है, कैपिटल आर। नाउ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, एन केप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल at a point on the surface of the cell is maximum. यानी इस कंडीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, क्या कि द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो r लेस ग्रेटर देन कैपिटल R, r इक्वल्स टू कैपिटल R एंड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो आपको क्या करना है, एट द सरफेस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। इसके लिए भी हम नोट्स देख लेते हैं। एट द सरफेस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, जो कंसिडरिंग पॉइंट स्मॉल r था जहां पे हमें कैलकुलेट करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो क्या है, सरफेस पे है, किसके, जो स्पेरिकल सेल है उसके सरफेस पे है, तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो इसी एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, स्मॉल r रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R, और यहां पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम। ठीक है, E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप।
Now the electric field at a point B inside the cell. It means here we are going to find out the electric field intensity due to this charged spherical cell inside itself. ये आपके पास चार्ज स्फेरिकल सेल था, अब इसके इनसाइड में एक पॉइंट है जहां हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट कौन सा आपका बी पॉइंट है। नाउ वी विल एज्यूम ए गाउसियन सरफेस सच दैट that particular point B where we have to find out the electric field intensity must be on the surface of that Gaussian surface. See here, जो हमने Gaussian surface assume किया वो इस तरह से assume किया कि ये B point इसकी surface पे होना चाहिए। Its radius is small r. Now again here we are considering the surface element and its direction is normally outward. Electric field also outward. So from the Gauss law, this is the mathematical expression of the Gauss law. So here the integral of surface element ds will be 4 pi small r square. Why small r square? Because जो गाउसियन सरफेस है हम तो उसी से एनक्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एनक्लोज जो पर्टिकुलर सरफेस उसका रेडियस तो r है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और Q क्या बन जाएगा 0, क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस और देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। This is the property E equals to 0 inside a cavity is used for electrostatic shielding, जो हम कंडक्टर में पढ़ेंगे। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका ओरिजिन O है। तो यहां पे देखिए ओरिजिन O, तो इस ओरिजिन से जब हम सरफेस तक जाएंगे तो इनसाइड की बात होगी, और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो क्या है आपका 0, यहां तक तो है ही नहीं, देखो कोई फील्ड नहीं है। जैसे हम सरफेस पे जाएंगे मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम, और जब सरफेस के आगे की बात करेंगे तो सरफेस के आगे क्या था, दिस एक्सप्रेशन E इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये r क्या कर सकता है, जैसे जैसे आउटर साइड में जाएंगे r वेरी करेगा, कैपिटल R कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो 1/r स्क्वायर की तरफ फॉलो कर जाएगा। तो 1/r स्क्वायर, इफ r इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहां से लेके यहां तक ये क्या है r लेस देन ये कैपिटल R है, ठीक है। इस पॉइंट तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, एंड कैपिटल R पे आते ही ये मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा आगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये जो पॉइंट आपका क्या है R है, यहां पे आपका R पॉइंट है, ठीक है। तो यहां तक तो ये 0 हो जाएगा, यहां ये मैक्सिमम हो गया, एंड देन फिर ये डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये यहाँ पे मैक्सिमम है एट पॉइंट कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। नोट्स में बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R, सिंस द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर और स्फेरिकल सेल इज 0, सो Q इन 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। तो रिलेशन बिटवीन E एंड R क्या है यहाँ पे, स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, मीन्स आउटसाइड के लिए हम बात करें देन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सरफेस पे अगर हम बात करें तो एट द सरफेस E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा यहाँ कैपिटल R, ओके।
and for small r less than capital R means inside electric field is 0। यहाँ भी ये ग्राफ आ जाएगा, ये E मैक्सिमम 0 R मैक्सिमम पॉइंट एंड ये डिक्रीजिंग है अकॉर्डिंग टू 1/r²। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।